Good morning, children. Today we will study about the effect of concentration and temperature on electrode potential. इसके पहले हमने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिटरमिन किया था NHE के रेस्पेक्ट में, जहाँ पर हमने कंसंट्रेशन ऑफ आयन को 1 मोलर रखा था और टेम्परेचर 298 केल्विन. But it is not always necessary that the concentration will be always 1 molar and the temperature will be always 25 degrees Celsius or 298 Kelvin. So concentration may be different from 1 molar and also the temperature can be different from 298 Kelvin. So how the electrode potential depends upon concentration of ion and temperature, इट कैन बी गिवन बाय नस्ट इक्वेशन. तो किसी भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए नस्ट इक्वेशन जब हम लिखते हैं तो ध्यान रहे कि सबसे पहले हम उस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड रिएक्शन लिखते हैं और कन्वेंशनली हम इलेक्ट्रोड रिएक्शन को रिडक्शन इलेक्ट्रोड रिएक्शन लिखते हैं और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के ही फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं. फॉर एग्जांपल Mn+ that is metal ion having n positive charge takes n electron to form metal solid, just as Zn++ plus 2 electron gives Zn. So for this electrode reaction, Nast equation can be written as so if you see this reaction तो यहाँ रिडक्शन हो रहा है तो इसका पोटेंशियल क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल होगा. तो इसको ऐसे रेडॉक्स कपल से एक्सप्रेस करेंगे. सो E Mn+/m इक्वल टू E naught Mn+/m minus RT upon NF log Q. This is the main Nast equation where Q is reaction quotient, or it is also called as the equilibrium constant if the electrode reaction is at equilibrium. Now in this expression, R is gas constant. Its value is 8.314 joule per Kelvin per mole. Test temperature in Kelvin scale. If it is 25 degrees Celsius, then it is 298. That is standard temperature in Kelvin. N is number of moles of electron involved in the electrode reaction, and F is Faraday's constant. Now Q is reaction quotient. So as we know, it can be the equilibrium constant if the electrode reaction is at equilibrium. So this reaction quotient is defined in the same manner as we define the equilibrium constant. It is the ratio of molar concentration of product to the molar concentration of reactant. So for dilute solution, the square bracket is used here. So square bracket, actually this means active mass, but in case of dilute solution it is nearly equal to molarity of the solution. So wherever the square bracket is used, it stands for the molarity of the solution. So now if we put the value, so the reduction electrode potential equal to standard reduction electrode potential. So this is the value determined with reference to NHE minus 2.303 RT upon NF. Now it is log base 10. 2.303 से मल्टीप्लाई किया, जो नेचुरल लॉग था उसको हम लॉग बेस 10 पर कन्वर्ट करने के लिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दैट इज मेटल आयन. ध्यान रहे कि इस एक्सप्रेशन में कोई प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड इन्वॉल्व होता है तो उसका कॉन्सेंट्रेशन यूनिटी लिया जाता है, बिकॉज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्योर सॉलिड एंड लिक्विड इज टेकन एज इंटेंसिव प्रॉपर्टी. और अगर कोई गैस है और जिसका प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर दिया गया है तो वो भी आप यूनिटी ले सकते हैं, तो उसका भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. तो ये एक्सप्रेशन, इसके जगह पर आप log 1 अपान मेटल आयन कॉन्सेंट्रेशन लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ मेटल सॉलिड है तो उसका कॉन्सेंट्रेशन यूनिटी लिया जाएगा. ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू इन द इक्वेशन, अगर सारी वैल्यूज़ को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं और सॉल्व करते हैं, सो द इक्वेशन कैन बी रिड्यूस्ड इन दिस फॉर्म, that is Emn+/m reduction electrode potential equal to standard reduction electrode potential minus 0.059 upon n. N is number of electron involved here in the electrode reaction log
1 upon metal ion concentration. So this is called as Nernst equation. Let us apply the Nernst equation to determine the cell potential. तो इसके लिए हम एक सेल कंसीडर करते हैं, मान लीजिए जिंक कॉपर सल्फेट सेल है। उसके लिए सबसे पहले हम इलेक्ट्रो रिएक्शन लिख लेंगे। जनरली ऑब्लिक के पहले जो मेटल लिखा रहता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है और उसका ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ पर जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है और जो सॉल्यूशन है उसका आयन रिड्यूस होता है। तो जिंक इज ऑक्सीडाइज टू जिंक आयन, कॉपर आयन इज रिड्यूस टू कॉपर। तो जहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है वो एनोड होता है, हमने पहले भी देखा था, और जहाँ पर रिडक्शन होता है वो कैथोड होता है। तो जब एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन कन्वेंशनली चाहे जो इलेक्ट्रोड हो उसके रिएक्शन को हम रिडक्शन रिएक्शन ही लिखते हैं। तो अगर हम इस एनोड के लिए रिडक्शन रिएक्शन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इसको इधर कर देंगे, Zn+++2 इलेक्ट्रॉन जिंक सॉलिड। ऑन अप्लाइंग द नर्स्ट इक्वेशन, अगर इस पर हम अप्लाई करते हैं तो हम इस तरह से लिखेंगे, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक इक्वल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक माइनस 0.059 अपॉन n यहाँ पर 2 लिख सकते हैं क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन इलेक्ट्रोड रिएक्शन 2 है, लेकिन हम जनरल एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे इसलिए n लिख लेते हैं। लॉग Zn सॉलिड अपॉन जिंक n, यहाँ पर आप यूनिटी लिख सकते हैं लेकिन हम बाद में इसको डिस्कस करेंगे। पर्पजली इसको यहाँ पर रखा हुआ है, अदरवाइज यू मे पुट 1 बिकॉज द कंसंट्रेशन ऑफ एनी सॉलिड इज टेकन एज यूनिटी. So this is our one equation for anode. Similarly, you can derive for cathode also. Similar equation, copper ion reduced to copper solid. So this is cathode, reduction is taking place. Now applying the Nernst equation here, reduction electrode potential of copper is equal to standard potential minus 0.059 upon n for general case. Otherwise you may put here 2, number of electrode reaction. Number of electron involved in electrode reaction is 2 log copper upon copper ion. Copper solid, this is solid, so it can be taken as unity, but it is purposely put here. बाद में हमने ये देखेंगे कि हमने इसको क्यों रखा है. Now E cell equal to E cathode minus E anode. इसमें आपने पहले भी पढ़ा था कि जब हम ये एक्सप्रेशन यूज करते हैं तो कैथोड और एनोड दोनों के रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही लिखे जाते हैं. तो रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड. अब इनकी वैल्यूज़ को रख देंगे, माइनस ये वैल्यू रख दिया और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें फाइनली ई सेल इक्वल टू क्या मिलेगा, ई नॉट सेल प्लस 0.059 अपॉन 2. ध्यान रहे 0.059 तभी यूज होगा जब टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होगा, अदरवाइज आप 2.303 RT अपॉन NF वहाँ से आप उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे. लॉग Zn अपॉन जिंक प्लस प्लस, और ये अपान में था तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉपर आयन ऊपर चला जाएगा, क्योंकि ये था लॉग लॉग ये माइनस में है लॉग और ये प्लस में है लॉग, तो लॉग m माइनस लॉग n को लॉग m अपॉन n लिख सकते हैं. तो उसी फॉर्म में इसको किया गया है. लॉग m माइनस लॉग n इक्वल टू क्या होगा, लॉग m अपॉन n. तो इसको उसी फॉर्म में लिखा हुआ है. तो हम देखिए हमें ये इक्वेशन मिल गया, ये भी नर्स्ट इक्वेशन है सेल पोटेंशियल के लिए. अब कन्वेंशन क्या है कि जिंक सॉलिड है, कॉपर सॉलिड है, तो इसके कॉन्सेंट्रेशन को यूनिटी ले लेंगे. तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया और हमें ये फाइनल नर्स्ट इक्वेशन मिल गई. ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल प्लस 0.059 अपॉन 2 लॉग क्यूप्रिक आयन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन जिंक आयन. और अगर हम ये रिएक्शन लिखें तो हम ये जानते हैं कि ये रिएक्शन कॉपर आयन रिएक्टेंट साइड में होता है और जिंक आयन प्रोडक्ट साइड में आता है. यहाँ पर हमने देखा है कि अगर इस नर्स्ट इक्वेशन को हम अप्लाई करें इस सेल रिएक्शन के लिए, जहाँ पर ये सेल रिएक्शन हो रही है Zn प्लस कॉपर प्लस प्लस गिब्स Zn प्लस 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 कॉपर. कई बार रिएक्टेंट में जो स्पीसीज इन्वॉल्व हो रहे हैं वो दोनों आयन होती हैं, तो उस समय हम किसी भी ऐसा नहीं है कि किसी आयन के कॉन्सेंट्रेशन को यूनिटी ले लें, या प्रोडक्ट में जो दोनों स्पीसीज हैं वो दोनों आयन होती हैं, तो वहाँ पर हमें दोनों का कॉन्सेंट्रेशन लिखना पड़ेगा. तो इसीलिए हम एक जनरल इक्वेशन यहाँ पर डिराइव करते हैं कि अगर मान लीजिए आपका सेल रिएक्शन ये है तो इसका जनरल फार्मूला होगा नर्स्ट इक्वेशन का, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल प्लस 0.059 अपॉन 2
2 इसके लिए क्योंकि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं, अदरवाइज आप n यहाँ लिख सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हियर इन द इलेक्ट्रोड रिएक्शन, लॉग रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन अपन प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन. सो दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपन प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट. तो जो रिएक्टेंट है यहाँ पर क्या है, जिंक और कॉपर आयन है, तो इन दोनों के कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट लिखेंगे. तो ये हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ जिंक इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर. सिमिलरली प्रोडक्ट में मोलर कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आयन इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर हो जाएगा. तो इस तरह से हम नेक्स्ट इक्वेशन लिख सकते हैं. मान लीजिए एक जनरल सेल रिएक्शन है, ए मोल ऑफ ए रिएक्ट्स विद बी मोल ऑफ बी गिविंग सी मोल ऑफ सी प्लस डी मोल ऑफ डी. ये हमारा सेल रिएक्शन है. तो हम नेक्स्ट इक्वेशन कैसे लिखेंगे, तो इसके लिए नेक्स्ट इक्वेशन लिखेंगे ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल प्लस 0.059 अपान एन, ये जब टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस हो, लॉग क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट with each concentration term raised to power equal to their stoichiometric coefficient upon product of molar concentration of products with each concentration term raised to the power equal to their stoichiometric coefficient. तो ये हमारा एक जनरल एक्सप्रेशन है नेक्स्ट इक्वेशन के लिए. अगर हम इसको फॉलो करेंगे तो कभी ये हमारा एक्सप्रेशन गलत नहीं होगा, चाहे दोनों रिएक्टेंट हमारे आयन हो, दोनों प्रोडक्ट आयन हैं, या कोई एक सॉल्यूशन है, कोई एक गैसियस स्पीसीज है. जब हम ये इक्वेशन यूज करेंगे, हाँ ये इक्वेशन लिखने के बाद अगर कोई सॉलिड स्पीसीज इन्वॉल्व हो रही है, हाँ तो सॉलिड, प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड का तब आप कंसंट्रेशन यूनिटी लेंगे और वहाँ पर 1 लिख सकते हैं. लेकिन अगर वो दोनों आयन है तो दोनों कंसंट्रेशन लिखना पड़ेगा. और अगर कोई गैसियस स्पीसीज है तो उसके भी पार्शियल प्रेशर को एटमॉस्फेयर में रखना पड़ेगा. नाउ अब ये आपके लिए क्वेश्चन है, राइट नेक्स्ट इक्वेशन फॉर कॉपर सिल्वर नाइट्रेट सेल. इसको इसलिए लिया गया है क्योंकि यहाँ पर वैलेंसी दोनों का अलग है, कॉपर बाइवैलेंट है और यहाँ पर जो आयन है वो मोनोवैलेंट है. तो सबसे पहले ऐसे केसेस में क्या करना है बच्चों कि सबसे पहले आप इलेक्ट्रोड रिएक्शन को लिख दीजिए. जैसे अब यहाँ पर ऑब्लिक के पहले जो लिखा हुआ है कॉपर इज़ मोर रिएक्टिव, तो जो मोर रिएक्टिव है जो पहले लिखा हुआ है उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन. और ऑक्सीडेशन किसकी रिएक्शन है, एनोड की. सिमिलरली जो सॉल्यूशन में आयन है, सिल्वर आयन, मेटल आयन, वो क्या होता है, रिड्यूस होता है. रिडक्शन किसका रिएक्शन है, कैथोड का. ओके, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, गेन एक ही इलेक्ट्रॉन हो रहा है. तो इस पूरे इक्वेशन को 2 से आप मल्टीप्लाई करो और फिर इसको आप जोड़ दीजिए. तो फाइनली आपको नेट सेल रिएक्शन मिल जाएगी, Cu प्लस 2Ag प्लस गिव Cu प्लस 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 ट्वाइस Ag. ध्यान रहे जब जो स्पीसीज इन्वॉल्व हो रही हैं सेल में, जो आपको सेल दिया गया है अगर उनकी वैलेंसी अलग अलग है तो ऐसे केसेस में सबसे पहले इलेक्ट्रोड रिएक्शन लिखना बहुत ज़रूरी होता है. तो सबसे पहले आप इलेक्ट्रोड रिएक्शन लिखें दोनों का, एनोड और कैथोड का. तो इससे हमें पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ़ आयंस कितने लॉस्ट और गेंड हो रहे हैं, एन की वैल्यू क्या होगी, और हमें ये भी पता चल जाएगा कि उस स्पीसीज की कितनी पावर लगाना है कंसंट्रेशन टर्म में. तो चलिए लिखते हैं इसके लिए ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल 0.059/2, क्योंकि टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है. अगर नहीं दिया गया है तो यही लेते हैं 25 डिग्री सेल्सियस. लॉग, अब आप देखिए कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट में प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कॉपर का कंसंट्रेशन इनटू सिल्वर का कंसंट्रेशन विद कंसंट्रेशन टर्म रेज टू पावर जितना उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है. तो कॉपर का 1 है तो 1 आप ओमिट भी कर सकते हैं, लेकिन सिल्वर का 2 है तो इसको आप लिखना पड़ेगा. तो इस कंसंट्रेशन का ये स्क्वायर हो गया. अब चूंकि हम जानते हैं कॉपर सॉलिड में है तो 1 हो जाएगा, ये बाद में आप चेंज कर सकते हैं. सिमिलरली प्रोडक्ट साइड में आप देखिए क्यूप्रिक आयन है, लेकिन इसकी जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है तो यहाँ पर 1 ही पावर रहेगा, लेकिन इसकी पावर 2 हो गई. अब हम जानते हैं सिल्वर सॉलिड है तो इसका कंसंट्रेशन यूनिटी लेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा. तो जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये फाइनल हमारा नेक्स्ट इक्वेशन इसके लिए हो जाएगा. सिमिलरली मान लीजिए आपको एक पहले हम क्वेश्चन करेंगे, कैलकुलेट द EMF ऑफ द फॉलोइंग सेल. जहाँ पर हमें ये सेल दी गई है बच्चों, कैडमियम ऑब्लिक कैडमियम प्लस प्लस, जहाँ पर कंसंट्रेशन 0.10 है,
और ये साल्ट ब्रिज है, ये हमारा सेल रिप्रेजेंटेशन है, ये दिया गया है। तो सबसे पहले जो गिवन वैल्यू है कैडमियम का स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है, आर की वैल्यू दी गई है, ये सब दिया हुआ है। तो यहाँ पर देख रहे हैं आयन की वैलेंसी अलग है, तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, इलेक्ट्रोड रिएक्शन लिख लेंगे। यहाँ पर ये एनोड साइड होता है, लेफ्ट साइड क्या होता है, एनोड। ध्यान रहे लोन याद रखिए, लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीडेशन, एनोड नेगेटिव टर्मिनल। तो यहाँ पर कैडमियम प्लस प्लस में चेंज हो रहा है, तो ये कब होगा, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। सिमिलरली यहाँ पर H प्लस है, ये रिड्यूस हो रहा है, तो 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी, तो इसको हमने 2H प्लस यहाँ पर कर लिया हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए। तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन गेन हुआ, तो नेट सेल रिएक्शन कैडमियम प्लस 2H प्लस गिव्स कैडमियम, और ये मिल जाएगा। अब हम सबसे पहले ई नॉट सेल कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये क्या होता है, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। अब चूँकि यहाँ कैथोड कौन सा है, जो राइट हैंड साइड में है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 होता है, माइनस इसकी वैल्यू रख देंगे कैडमियम की माइनस 0.403, इसको सॉल्व करेंगे, ये आ गया। फिर हम नेक्स्ट इक्वेशन लिख देंगे, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल प्लस 0.059/2। ध्यान रहे कि 25 डिग्री सेल्सियस रहने पर ये यूज होगा, या कुछ नहीं दिया है तो हम 298 केल्विन लेते हैं जब वैल्यू यही आएगी। लॉग प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ये वैल्यूज रखेंगे, कैडमियम इंटू H प्लस का स्क्वायर, और फिर यहाँ पर कैडमियम प्लस प्लस, ठीक है, इंटू हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन। अब हम देखें यहाँ पर क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन का आपको यहाँ पार्शियल प्रेशर 0.5 एटमॉस्फेयर दे रहा है। अगर आप इसको इग्नोर कर देते, छोड़ देते, तो ये गलत हो जाएगा। तो अब हमने इसकी वैल्यू स्टैंडर्ड पोटेंशियल लिख लिया, ये वैल्यू रखी है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, लॉस और गेन 2 है, तो एन की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब लॉग कैडमियम सॉलिड है तो 1 हो जाएगा। H प्लस कॉन्सेंट्रेशन आपको दिया गया है 0.2 का स्क्वायर, और आपको कंसंट्रेशन ऑफ कैडमियम आयन है 0.1, और हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर दिया हुआ 0.5 एटमॉस्फेयर, तो 0.5 यहाँ लिखना पड़ेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा, करेक्ट। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ये जनरल एक्सप्रेशन यूज करेंगे, क्योंकि कई बार रिएक्टेंट में दोनों स्पीसीज आयन होता है और प्रोडक्ट के दोनों आयन है, तो आप किसी को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, उसमें दोनों की वैल्यू रखना पड़ेगा। नाउ वी विल टेक कंसंट्रेशन सेल। बच्चों कंसंट्रेशन सेल क्या होती है कि जिसमें इलेक्ट्रोड उसी मटेरियल का बना हुआ है, सॉल्यूशन भी उसी का मेटल आयन का है, बट कंसंट्रेशन अलग है। तो ऐसे केसेस में मान लीजिए हमें सेल दी गई है जहाँ पर जिंक इलेक्ट्रोड है, ये भी जिंक इलेक्ट्रोड है, लेकिन दोनों के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स अलग अलग हैं। यहाँ पर एक का कंसंट्रेशन C1 है, एक का कंसंट्रेशन C2 है, लेकिन हमें C2 इज़ ग्रेटर दैन C1। तो बच्चों अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो उसका रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा होगा, और अगर रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा है तो वो कैथोड का काम करेगा। तो इसका मतलब ये कैथोड का काम कर रहा है। इसका कंसंट्रेशन कम है तो इसका रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम है। रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम हुआ, इसका मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, तो ये एनोड का काम करेगा। तो ये लेफ्ट हैंड साइड लिखा गया है। इसके बाद हम सेल एक्सप्रेशन लिख दें 298 केल्विन पर। तो ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल प्लस 0.059/n, यहाँ n की वैल्यू 2 होगी, लॉग C2 अपॉन C1, C2 इसका कंसंट्रेशन है जो हायर है अपॉन C1। अब हम जानते हैं कि ई नॉट सेल क्या होगा, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, वो स्टैंडर्ड कंडीशन में होते हैं, दोनों बराबर हैं, तो ई नॉट सेल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ये वैल्यू पुट करिए और हमें ये इक्वेशन मिल जाएगी कंसंट्रेशन सेल के लिए। ई सेल इक्वल टू 0.059/n लॉग C2 अपॉन C1, वेयर C2 इज ग्रेटर दैन C1। ओके, नाउ we will take relationship between E naught cell and equilibrium constant। होता क्या है कि जैसे ही कोई सेल रिएक्शन मान लीजिए ये है और ये सेल रिएक्शन प्रोग्रेस करती है, तो हम जानते हैं कि पहले रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड ज़्यादा रहता है और रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड कम रहता है। लेकिन जैसे जैसे सेल रिएक्शन चलती है जिंक ऑक्सीडाइज होगा तो जिंक आयन का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा यहाँ पर, और जैसे जैसे जिंक आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा वैसे वैसे जिंक का रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। दूसरे कंपार्टमेंट में क्या हो रहा है कि यहाँ पर कॉपर आयन रिड्यूस होगा क्योंकि कॉपर आयन का रिडक्शन हो रहा है। तो जैसे जैसे कॉपर आयन रिड्यूस होगा तो कैथोड के कंपार्टमेंट में कॉपर आयन का कंसंट्रेशन क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा, और इसका जो रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पहले ज़्यादा था वो कम होने लगेगा। अल्टीमेटली वन कंडीशन इज अप्रोच्ड, जबकि जो ई कैथोड है, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड है वो एनोड के बराबर हो जाता है, और ऐसे कंडीशन में सेल पोटेंशियल 0 हो जाएगा
और जो पोटेंशियल डिफरेंस है अब वो जीरो हमें शो होने लगेगा। तो ऐसे कंडीशन में जो कंसंट्रेशन ऑफ आयंस है वो कांस्टेंट वैल्यू को अप्रोच कर जाते हैं, जिसको हम इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन कहते हैं, और हमारी सेल रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर आ जाती है। तो जब हमारी सेल रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर आ जाए, जैसे ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर आ गई, तो हम जानते हैं कि हर इक्विलिब्रियम रिएक्शन एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से कैरेक्टराइज होता है, एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो अगर जो सॉलिड स्पीसीज हैं उनका कंसंट्रेशन यूनिटी लिख लें तो Kc इक्वल टू ये हो जाएगा। नाउ अप्लाइंग द नस्ट इक्वेशन हम ये वैल्यू रख सकते हैं। नाउ हम जानते हैं कि सेल रिएक्शन चूँकि इक्विलिब्रियम को अप्रोच हो गई है तो ई सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, ये हमारा आ गया। नाउ यहाँ पर है लॉग कॉपर आयन अपान जिंक आयन, और हम देखें Kc की वैल्यू है जिंक आयन अपान कॉपर आयन, तो इसका मतलब कॉपर आयन अपान जिंक आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन है उसकी जगह 1 अपान Kc लिख सकते हैं। ओके, नाउ ई सेल इक्वल टू जीरो है, तो ई नॉट सेल को हम लेफ्ट हैंड साइड लाइए तो ये माइनस हो जाएगा, और अगर हम ये हो जाएगा प्लस रहेगा, लेकिन हम इसको माइनस कर लें तो ये 1 अपान Kc लॉग Kc हो जाएगा। दोनों तरफ नेगेटिव है तो ये प्लस हो गया, तो ई नॉट सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.059 अपान एन लॉग Kc। तो अगर हमें ई नॉट सेल दिया हुआ है, या हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड से इलेक्ट्रोड रिएक्शन से एन की वैल्यू आ जाएगी, तो हम लॉग Kc निकाल के फिर हम Kc एंटी लॉग कर लेंगे, और हमें Kc की वैल्यू अगर मिल जाएगी, अगर Kc लार्जर है तो इसका मतलब ये है कि वो सेल रिएक्शन ज़्यादा देर तक प्रोसीड करेगी और ज़्यादा देर तक हम उससे करंट को विड्रॉ कर सकते हैं, करंट का यूज कर सकते हैं। अगर Kc की वैल्यू छोटी हुई, इसका मतलब इक्विलिब्रियम बहुत जल्दी अटेंड हो जाएगा, और दोनों टर्मिनल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर बराबर हो गया तो ऐसे कंडीशन में सेल पोटेंशियल जीरो हो जाएगी। बच्चों एक रिलेशनशिप हमें और पढ़ना है, रिलेशनशिप बिटवीन ई सेल और डेल्टा जी। हम जानते हैं डेल्टा जी को गिब्स फ्री एनर्जी चेंज बोलते हैं। गिब्स फ्री एनर्जी चेंज क्या होता है, इट इज़ द यूजफुल वर्क डन बाय द सिस्टम। सो डेल्टा जी इज़ इक्विवेलेंट टू यूजफुल वर्क, और इलेक्ट्रिकल वर्क को हम यूजफुल वर्क मानते हैं। तो वर्क इलेक्ट्रिकल इक्वल टू क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। अब क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्लोइंग थ्रू द सर्किट किसके बराबर होगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लो कर रहे हैं मल्टीप्लाइड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जो फ्लो कर रहे हैं मल्टीप्लाइड बाय चार्ज कैरिड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब चार्ज कैरिड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 फैराडे होता है, तो NF ये जो प्रोडक्ट है NF, सो दिस गिव्स द टोटल चार्ज दैट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस इज ई सेल। तो ई सेल कैसे आएगा, ई कैथोड माइनस ई एनोड से आ जाएगा। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रिकल वर्क है दैट इज इक्विवेलेंट टू NF ई सेल। Now since work is done by the cell, so it is taken as negative conventionally. So delta G equal to minus NFE cell. Now since work is done by the, that's why it is taken as negative. अब मान लीजिए स्टैंडर्ड स्टेट में है तो डेल्टा G नॉट इक्वल टू माइनस NFE नॉट सेल। थैंक यू वेरी मच।